They have just started the war. Party has just begun. It was widely expected that it would be a day or 2 days of bombardment and the Iranian government will collapse. Politically and strategically, President Trump has lost this war. There is no room for third world war. Russia is not interested in opening a new front. China is also not interested in war. Yemen is now part of war. वो जैसे 10-12 साल पहले अरब स्प्रिंग आया था ना, it's a Persian spring. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। आज हम वार की लेटेस्ट सिचुएशन पर बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Welcome salam. Thank you so much, Rabia, for having me again. सर, वॉर जो है, हमारा ख्याल था कि शायद जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगी, सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। कहाँ पे स्टैंड करी है वॉर? Thank you so much. Well, I should not say this, but it's really going very interesting. बहुत ही awkward है ये जुमला, लेकिन unfortunately हकीकत भी कुछ ऐसी ही है. It was widely expected that it would be a day or 2 days of bombardment and the Iranian government will collapse, जिसको वो regime कहते हैं, and it will be all a field day for the United States and Israel. But unfortunately for the US, that has not happened. And the Iranians have put up a very brave fight. And now it's almost 31st day as we are recording this show. So it means the war has gone wayward. And now it is uncontrollable by any means. Yes. And as far as Tehran is concerned and the government of Iran is concerned, they have just started the war. As they say, the party has just begun. So with the amount of arsenal they have and with the amount of strategic depth and capability they do possess as far as warfare is concerned. So I think this war will take a while and it is unstoppable as far as military means are concerned. Because the Gulf states, which are the allies of the United States, as well as the Israel, Yes. the henchmen, they are on the receiving end. And Iran has every political and geostrategic opportunity to unleash as much terror as it can on these countries, and it is doing that. और वो So I कर रहा है, think लेकिन ये फिर क्लोजिंग का कोई सीन आपको नहीं लग रहा? क्लोजिंग का सीन फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है. जहां तक अनफॉर्चुनेटली जो डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, डिप्लोमेसी वन वे चल रही है, क्योंकि इस वक्त जितनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी हो रही है, चाहे वो टर्की की तरफ से हो रही हो या सऊदी अरब की तरफ से हो रही हो, वो सिर्फ किसी तरह वॉर को स्टॉप कराने के लिए, और अमेरिकन जो है वो अपने आप को बचाने के दे जस्ट वांट एन एग्जिट वे. Yes. बिकॉज ट्रम्प की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल ही मिजरेबल हो चुकी है एज फार एज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न एंड एज फार एज पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो कंसर्न. 70% ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट दिस वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द फेनोमेनन ऑफ वियतनाम वॉर, जहां अमेरिकन को इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी. तो इसमें जो डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है वो प्रो अमेरिकन डिप्लोमेसी जारी है. इट्स नॉट एन इवन हैंडेड डिप्लोमेसी, जिसकी वाहिद मिसाल ये है कि 15 पॉइंट्स जो अमेरिकन की तरफ से आए, उन 15 पॉइंट्स को पूरा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है दैट वाज मेंट टू सेव इजराइल स्किन. उसमें कहीं भी जो ना ईरान के लिए लीवे नहीं था, सिवाय एक पॉइंट के, जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया था सिर्फ जस्ट टू अट्रैक्ट हेडलाइंस के सैंक्शंस विल बी टेकन अवे फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम ईरान, दैट दे आर बाउंड टू मेल्ट डाउन एनीवे, जो इस वक्त जो रीजन में हो रहा है. और दूसरा जो उसका जो रिजॉइंडर ईरान की तरफ से आया, जो 5 पॉइंट्स आए, वो स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीकेशंस रखते हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि यू हैव टू फिक्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, ओनली देन दिस वॉर विल कम टू एन एंड. So I don't see any middle way, and I should say this here that as far as Islamabad and Pakistan is concerned, it has done a superb job by trying to mend fences on both the sides, and it has got a hurdle as well from Egypt, Saudi Arabia, to Turkey. But again, unfortunately, these are all American allies. Yes. There is no representation as far as Iran is concerned on the table. It would have been much better if Oman had been part of this discourse. Then I think some headway could have been made. The point is that diplomacy is not making headway and the war is going to have its way anyway. तो फिर हम ये ख्याल कर सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने जा रही है या हो चुकी है? The good point is that there is no room for third world war as of now. उसकी दो बेसिक रीजंस है. उसकी वजह ये है कि रशिया इज बॉक्ड डाउन इन यूक्रेन, एंड एज फार एज जियो strategic implications are concerned, Russia is not interested in opening a new front as far as Iran is concerned, on the war front as far as, but the espionage from point of view, from tactical support point of view, from supplying of armament point of view, Russia is very much there in the war. And secondly, China is also not interested in war because it has its own geo-economic outlook, because it believes in global networking, and it is one of the prime beneficiary with the closure of Suez
with the closure of this Strait of Hormuz. So I don't see, as far as Russia and China are on the fences, I don't see a possibility for a third world war, but it is getting nastier with which each passing day, and the Middle East is on a very badly receiving end. And I Mhm. think it is going to change the entire dynamics of real politics in the world. And I would also say that as far as Pax Americana is concerned, it has gone down. राइट। बिकॉज़ मिडल ईस्ट में सब कुछ चेंज हो चुका है। जो हुँ। जियो इकोनॉमिक ऑर्डर अमेरिका का था 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद, व्हिच इज़ डॉलर ओरिएंटेड, नाउ इट इज़ नोवेयर। नाउ थ्रू द Strait of Hormuz, a basket of currencies is emerging where you can make your payment in yuan as well as in other foreign currencies as well. So dollar is taking a back seat. तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिकली अमेरिका को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, हुँ। एंड थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। इट मिडल ईस्ट एंड द रीजन विल नेवर बी द सेम अगेन। सर, जो ईरान की अप्रोच है और जी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से गल्फ़ अपने आप को लेके चलेगा? देखिए, जहाँ तक गल्फ का ताल्लुक है ना, इट इज़ इन अ रिलेशनशिप विद ईरान ऑन अ टिट फॉर टैट बेसिस। The good point is that until now, Iran has not attacked any of the civilian facilities in any of these countries, whether it is राइट। Bahrain, Saudi Arabia, हुँ। UAE, or Kuwait. But having said that, they have been badly hit as far as strategic installations are concerned, as far as energy installation concerned, as far as now the industry also, because Abu Dhabi has also been hit overnight. यस। So the point is that they are on the receiving end as far as economic aspect is concerned, which is very vital for all these business capitals of the Middle East. So the point is that as far as they are part and parcel of this war on the bandwagon of the United States, हुँ। these countries will be in a bad shape. The way forward is that Saudi Arabia, UAE, and all these other Middle East countries should distance itself from what is going on as far as Israel and United States is concerned, and they should directly try to mend fences with Iran. And Iran has already said that as far as they are part of the war, they will be on the receiving end. So I think that the dynamics should change. डू यू And थिंक कि here, वो बैक एंड पे जाएँगे गल्फ़ कंट्रीज़? नेवर। uh, दे वोंट लीव अमेरिका। देखिए, उनको जाना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के जहाँ तक मिलिट्री फुटप्रिंट इज कंसर्न, दैट इज ऑलरेडी कमिंग टू एन एंड। हुँ। क्योंकि उनकी जितनी इंस्टॉलेशन है वो हिट हो चुकी हैं। खतर हैज बीन बैडली हिट, सऊदी अरब में जो यूएस बेसिस हैव बीन बैडली हिट, एज वेल एज इन अबू धाबी। तो जो ड्रॉबैक अमेरिकन को देखना पड़ा है उसमें अगर मैं यूं कहूँ कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के तौर पे ही देखा जाए, तो उनको गल्फ स्टेट्स को रिट्रीट करना चाहिए, बिकॉज ऑल दे वांट टू, उनके लिए जो प्रेफरेंस होनी चाहिए इस वक्त, वो ये कि उनका सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर जो कोलैप्स होने से बच जाए, हुँ। और वो जो उनकी जो एक मिथ थी और वो जो इनकी एक फैंटेसी थी कि दे आर द मैग्नेट ऑफ बिजनेसेस, उसको रिटेन करने के लिए मेरा ख्याल है उनको वॉर से बाहर आना पड़ेगा। और ईरान से फेंस मेंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके शो के लिए जी, करता चलूँ प्लीज़। कि 1963 में जिस तरीके से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक अकॉर्ड हुआ था, ये हुँ। ट्रीटी हुई थी, उसको एलसी ट्रीटी कहा जाता है। उसके बाद ये दोनों ममालिक फ्रांस और जर्मनी, जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 300 इयर्स, दे वर फ्रेंड्स। हुँ। आई थिंक ये मॉड्यूल ये अप्लाई करने की ज़रूरत है, और ईरान एंड दिस गल्फ स्टेट शुड गेट टुगेदर फॉर अ ग्रैंड हडल, एंड आई थिंक थिंग्स विल बॉयल डाउन टू अ बेटर टुमारो। और डिप्लोमेसी की जब हम बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की, उसमें आपको लग रहा है कि गल्फ जो है वो कोई पॉजिटिव पार्ट ले रहा है? क्योंकि न्यूज़ का एक हिस्सा ये भी है कि दे डोंट वांट कि ईरान जो है उसको किसी तरह से हेडवे मिले। हेडवे मिले। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अपने कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ेगा। इट्स नॉट वो जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू शुड हैव अ ब्रेव स्पीच। हुँ। तो ब्रेव स्पीच के लिए मेरा ख्याल है एवरी पार्टी कंसर्न शुड टेक वन स्टेप बैक, सो दैट और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने ये तो कहा है कि इट विल गो ऑन विद द वॉर, यस। क्योंकि वो ये समझता है कि इस वक्त तो पूरी डायनामिक्स मिडल ईस्ट चेंज करने के ईव पर है। Like at the same time, it should also look at the bigger picture of reconciliation. वो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था हुँ। ना, you cannot ignore geography. You यस। have to live within that same geography. उसका ख्याल करते हैं मेरा ख्याल है गल्फ स्टेट्स को और ईरान को फॉरेन रैप्रोचमेंट की तरफ जाना चाहिए। They should start talking directly, और मैं समझता हूँ कि अरबों में इतनी शाइस्तगी होती है और है उनके अंदर, और एज वेल एज द ग्रेट पर्शियन सिविलाइजेशन।
तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बातचीत करना शुरू करें तो हेडवे हो सकता है, और इसमें जो लोग अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, हुँ, सो ओमान अच्छा किरदार अदा कर राइट। सकता है। हम तो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो आई थिंक थिंग्स शुड गो हेडवे, बट लेकिन अमेरिकन्स को ये रियलाइज़ेशन अब आ जानी चाहिए कि दे हैड ब्लंडर्ड हुँ, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एज़ दे प्लान्ड। ओके। आपको लग रहा है कि अमेरिका अपनी आर्मी भेजेगा ईरान? फुटस्टेप्स। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि वियतनाम 2 हो जाएगा फिर ये। और अब और ईरानियंस ने ऑलरेडी, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी कह दिया कि दे आर वेटिंग फॉर द ट्रूप्स। तो येस, करग आइलैंड पे अगर किसी भी किस्म की अगर वो अपनी फोर्सेस उतारते हैं, या फिर अबू मूसा के जो थंब आइलैंड्स है यूएई के साथ, येस। जिस पे ईरान और यूएई का दोनों हाँ, का दावा है, अगर उसको इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, तो दिस वॉर की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। और वॉर की डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। वो इस तरीके से मैं बताऊं कि यमन इज नाउ part of war, because it हुँ, has started attacking Israel, and you never know. Iran, Yemen can start barging in their missiles inside Saudi Arabia as well. हुँ, लेबनान का फ्रंट ऑलरेडी ओपन है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है वो ये है कि इराक एंड ईरान आर जॉइनिंग हैंड्स, ठीक क्योंकि एक है। फतवा अभी रिसेंटली आ गया है सैयद सिस्तानी की तरफ से, जो कि बहुत हुँ, बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं इराक के, और ज़्यादा के अल्टीमेटली पूरी शिया वर्ल्ड के भी उनको काफ़ी बड़े लीडर शुमार किया जाता है। उन्होंने कह दिया है कि दे आर गोइंग टू कम फॉर द असिस्टेंस ऑफ ईरान इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन थिंग। तो ह्यूमैनिटेरियन जब शिप हुँ, होगी बसरा से लेके ईरान तक, तो एक तो ईरान को लीवे मिलेगा उसका, एंड येस। यू नेवर नो, इसमें फिर आर्मामेंट का मामला भी शुरू हुँ, हो सकता है। सो द वॉर इज एक्सपेंडिंग। तो राइट। मेरा ख्याल है कि द अर्लियर इट कम्स टू एंड, द और जो बेटर। पाकिस्तान का मुआहिदा है सऊदी अरब के जी। साथ, और अभी आपने कहा कि सऊदी अरब जो है उसके ऊपर भी ईरान हमला कर सकता है। पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजिक प्लान करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ वेरी कैच 22 सिचुएशन का मामला है। वो जो अकॉर्ड हुआ था वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान था, और उसका इंटेंशन अपेरेंटली ये था कि इट वाज सपोज्ड टू बी अगेंस्ट इज़राइल, क्योंकि यस। इज़राइल वाज एनक्रोचिंग ऑन गाज़ा, इज़राइल एनक्रोचिंग ऑन वेस्ट बैंक, जो 1 साल की वॉर, बल्कि 2 साल की वॉर जो गाज़ा में चली थी, उसमें सऊदी डिफेंस के लिए वो मुआहिदा था, और मुआहिदा आज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न अब बीच में ईरान आ गया है। अब एग्ज़ैक्टली। ईरान आ गया है, तो एज़ फार एज़ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एग्रीमेंट आर कंसर्न्ड, जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं ऑफिशियली, उसमें तो हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से भी और हुँ, पाकिस्तान की तरफ से भी, ताकि थर्ड पार्टी ईरान इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। और ये मुआहिदा अभी तक इसलिए होल्ड ऑन है कि ईरान ने अभी तक किसी भी सऊदी सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया है। हुँ, गॉड फॉरबिड अगर कल ये वॉर एक्सपैंड होती है, यमन की वजह से हो या लेबनान की वजह से हो, और सऊदी अरेबिया हिट होता है, तो फिर देन वी विल बी इन अ डिलेमा, और फिर यस। देन द पूरा इसका जो मोज़ेक है वो बिल्कुल ही चेंज हो अच्छा, जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा प्लीज़। अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान की शिप्स जो हैं उनको गुज़ारा जा रहा है। जी। पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं अभी तक ईरान के साथ भी, और अमेरिका के लिए भी नेगोशिएट कर रहा है जी। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रोल आप किस तरह देख रहे हैं कमिंग फ्यूचर डेज़ में? पाकिस्तान का जो रोल है वो यकीनन बहुत अच्छा है, और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि इस वक्त वी कैन नॉट बिकम अ पार्टी इन दिस क्राइसिस, राइट, क्योंकि हम वी हैव बीन अलाइड अलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ईरान के साथ हमारे ना सिर्फ हिस्टोरिक रिलेशंस है, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। फिर राइट। उसके अलावा 900 किलोमीटर्स का हमारा पोरस बॉर्डर है, जहाँ हुँ, पे इतनी ज़्यादा एथनिक और सेक्टेरियन अनसर्टेनिटी भी है। तो वी कैन नॉट बिकम अ पार्टी टू द वॉर। तो इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, अब जैसे अपने हुर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं अंडर आवर फ्लैगशिप, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए है कि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि नॉन एनिमी कंट्रीज को उसने स्ट्रेट हुर्मुज को ओपन रखा हुआ है। तो राइट। उसकी वजह से जो है हम वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि हमारा जो तेल का जो डेफिसिट का मामला है, ये भी किसी हद तक हल हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट बिकम अ पार्टी इन दिस वॉर। तो लेकिन उसमें अगर सऊदी अरब के साथ मसला हो गया तो हम तो इनडायरेक्टली पार्टी बन जैसे जाएँगे। कहा कि फिर पूरा मोज़ेक इसका चेंज हो जाएगा, एंड देन वी विल एग्ज़ैक्टली, बी या इन अ फिक्स। तो फिर ये वो जगह होगी जहाँ पे वॉर ब्रॉडन होगी, और पाकिस्तान के लिए सीरियस जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पैदा हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, कुछ और आखिर में कुछ रह गया हो जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इस वॉर में तो वो हो गया है जनाब, क्योंकि ठीक उसकी है। वजह है कि सोचा ये गया था कि ईरान की जो रिजीम है वो फॉल हो जाएगी, लाइक एग्ज़ैक्टली। हाउस ऑफ कार्ड्स। वो तो हुआ नहीं।
लेकिन दूसरी रिजीम्स को खतरा हो गया, जिसमें सबसे पहले इजराइल की रिजीम को खतरा हो गया है। यस इजराइल स्टैंड्स ऑब्लिटरेटेड एज ऑफ टू टुडे वी आर रिकॉर्डिंग दिस शो। इन्होंने कभी जिंदगी में इतना सेटबैक नहीं सोचा होगा जो इजराइल के साथ हुआ है। और सेकेंडली, पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट साथ ट्रम्प हैज लॉस्ट दिस वॉर। हम्म, तो इट्स बेसिकली वो जैसे 10-12 साल पहले अरब स्प्रिंग आया था ना, सो हम्म, इट्स अ पर्शियन स्प्रिंग।